Hello students, this is the third chapter of your book First Flight. The name of the chapter is Two Stories About Flying. We are doing the first part today. First part is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. This story tells about a young bird, seagull, that was afraid of flying. But at last, he was successful in flying with the help of his faith in himself. So these both stories tells us about having faith in ourselves. That will help us achieve anything, whatever we want. So we are starting with this first part, his first flight. The young seagull was alone on his ledge. ये जो छोटा सा बर्ड है सीगल, ये पहाड़ की चोटी पर, ledge means the part of a cliff, उस पर अकेला बैठा है. And he was sitting with his two brothers and his two brothers and sister had already flown away the day before. इसके भाई और बहन तो पहले ही उड़कर जा चुके हैं. But he was afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. So when he was trying to fly, but he was afraid, he could not fly. बहुत ज़्यादा डर गया वो और वो नहीं उड़ पाया, और उसके भाई और बहन जो थे वो पहले ही उड़कर जा चुके हैं. The great expanse of sea stretched down beneath. उसके नीचे पूरा का पूरा समंदर जो है वो दिखाई दे रहा है उसे, and he was afraid of that flying. And it was such a long way down. कितना नीचे उसे जाना है. He felt certain that his wings would not never support him. अब ये छोटा सा है और उसको लग रहा है कि उसके विंग्स जो है उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे. He could not fly in the air. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वो अपने जाके घर में जाकर फिर से लेट गया. जो उसका होल बना हुआ था, वो जहाँ पे वो रात को सोया था, he just went back there. Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. इससे छोटे भाई और बहन जो थे वो भी इससे पहले जा चुके हैं. ran to the brink, वो किनारे पर गए. brink means corner, edge of the cliff. तो वहाँ तक गए. flap their wings, उन्होंने अपने विंग्स फड़फड़ाए. and they flew away. he failed to muster up courage, लेकिन इसको हिम्मत नहीं हुई. he couldn't gather up the courage to take that plunge. वो जंप नहीं ले पाया, which appeared to him so desperate, and he was very much hopeless. बहुत ज़्यादा निराश हो गया, वो sad हो गया. His father and mother had come around, calling to him, shrilly upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब इसके पेरेंट्स जो हैं इसको चिल्ला रहे हैं, इसको डांट रहे हैं. अपब्रेडिंग मीन्स स्कॉल्डिंग, वो डांट रहे हैं. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसको धमकी भी दे रहे हैं कि तुम यहीं पर भूखे मर जाओगे अगर तुम नहीं उड़े. अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम नहीं उड़े तो तुम यहीं पर ही भूखे मर जाओगे. ही वुड स्टार्व देयर बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट वो फिर भी किसी भी तरह से वो अपने पेरेंट्स की उसने नहीं मानी. That was 24 hours ago. Now 24 hours had passed. Since then nobody had come near him. उसके parents अब उसके पास नहीं आ रहे हैं. The day before, all day long, अब पहले दिन जो इससे पहले वाला दिन था, he was watching his parents flying about with his brothers and sisters. His parents were flying with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. और उसको वो सिखा रहे हैं, उसके brothers and sisters को flying सिखा रहे हैं, सारी skills सिखा रहे हैं, teaching them how to skim the waves. उनको अपने बच्चों को, वो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को वेव्स को स्किम करना मीन्स वेव्स के ऊपर फ्लाई करना, पानी की लहरों के ऊपर तैर के, एक तरह से जैसे बर्ड्स उड़ते हैं तो उनको सिखाया जा रहा है. एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, और पानी में जंप लगा के डाइव करके कैसे फिशेस पकड़ी जाती हैं. सो दे वर जस्ट टीचिंग देयर चिल्ड्रन. But he was watching from there where he was sitting. He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring is the name of the fish.
और इससे हमने ब्रदर को भी देखा कि कैसे उसने फ़िश पकड़ी एंड डेवर इट मीन्स जैसे भूखे लोग खाते हैं, जस्ट ईट समथिंग क्विकली लाइक अ हंग्री पर्सन। तो उसने मतलब किस तरह से उसने खा भी ली। सो ही वॉज वॉचिंग फ्रॉम देयर ओनली दिस यंग सीगर स्टैंडिंग ऑन अ रोप वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल राउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकर। और इसके पेरेंट्स ने इसके ब्रदर के चारों तरफ सर्कल लगाया, बड़े खुश हुए। दे वर वेरी मच हैप्पी व्हेन हिज यंगर ब्रदर had eaten that fish, caught and eaten that fish. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारा दिन इसके पेरेंट्स, इसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसको भी टॉन्ट करते रहे सारा दिन कि तुम कायर हो, यू आर अ कवर्ड, बट ही जस्ट नॉट मूव फ्रॉम देयर। वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? बिकॉज ही वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। नाउ सन जो है पूरा आसमान में आ चुका है, असेंड मीन्स अपवर्ड्स आ चुका है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और वो शाइन कर रहा है इसकी क्लिफ पर, इसकी पहाड़ी पर, दैट फेस द साउथ, और साउथ की तरफ है इसकी जो क्लिफ है जहाँ पर ये बैठा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन since the previous nightfall. Now he was very much hungry. He had not eaten anything from the previous night. He stepped slowly out to the brink of the ledge. जब धीरे धीरे ये बाहर निकल के आता है, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. मतलब जैसे डरपोक होते हैं तो इस तरह से उसने अपने पैरों विंग्स के नीचे उसने अपने पैरों को छिपाया हुआ है। ही क्लोज्ड वन आई, एक आई उसने क्लोज की, देन द अदर, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. और मतलब औरों को दिखा रहा है अपने पेरेंट्स को जैसे कि वो सो रहा है। ही वॉज फॉलिंग asleep, ही वॉज स्लीपिंग, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। बट इसके पेरेंट्स ने इसको तब भी कोई नोटिस नहीं किया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स। अब इसने देखा कि इसके ब्रदर्स और सिस्टर्स तो डॉजिंग मीन्स स्लीपिंग, जब पेट भर के खाया हुआ उन्होंने और वो अपना आराम से सोए पड़े हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द feathers ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग होता है फेदर्स को, अपने पंखों को क्लीन करना। सो उसके फादर जो थे वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, बस उसकी मदर उसे देख रही है कि किसी तरह ये उठे और उड़े। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और वो मतलब जैसे उड़ने की कोशिश कर रही है, मतलब वो उसको एक तरह से उसको शो कर रही है कि तुम उड़ो। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और उसके पैरों में फिश का पीस है, एंड शी वॉज जस्ट टीयरिंग, वो उसको फिश के पीसेस को निकाल रही है, तोड़ रही है, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक। और फिर बार बार अपनी जो पहाड़ी है सामने पत्थर है उसके ऊपर अपनी बीक को दोनों साइड से साफ कर रही है, शार्पन कर रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडर्नड हिम, और इससे उसको इस फूड को देख के उसे वो एकदम पागल सा हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसको भी बड़ा मन कर रहा था कि किसी तरह वो भी इस फूड को इसी तरह से उसको टीयर करे। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, किसी तरह से वो भी अपनी बीक को खाना खा के और उसको अपनी बीक को शार्पन करे, एंड अगेन टू वेट इट। और वेट इट मीन्स, वेट करना मीन्स शार्पन करना, तेज करना, अपनी बीक को, चोंच को वो शार्पन करे। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो अपनी मदर को चिल्ला रहा है, बैग कर रहा है एक तरह से रिक्वेस्ट कि मुझे फूड दो। एंड शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली, और उसने उसको जैसे पागलों की तरह होते हैं बिल्कुल, डिरिसिवली मीन्स स्टूपिडली, उसने उसको उस पर वापस चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट वो बड़ा सैड सा, प्लेंटिवली मीन्स इन अ सैड मूड, बड़ा सैड सा होकर वो उसको चिल्लाता रहा कि मुझे खाना दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ही वो चिल्ला देता था खुशी से कि शायद मेरी मदर मुझे खाना दे दे। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी मदर जो है उसके पास फिश का पीस लेकर आई, उसके चारों तरफ वो उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट ईगरली, अब इसको लगा शायद मेरी मदर मुझे खाना दे देगी। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, एंड नाउ दिस यंग बर्ड ही वॉज ट्राइंग टू गो नियर हर मदर, कि मैं अपनी मदर के पास जाकर और इनसे वो फिश का पीस ले लेता हूँ। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जैसे ही बस वो उसके सामने थी वो रुक गई। शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन्स स्टॉप, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, बिल्कुल उसके विंग्स एकदम रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और ऐसा लगा जैसे यंग सीगल जो है वो उस फिश के पीस को पकड़ लेगा। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, नाउ
वो सरप्राइज्ड है कि मेरी मदर क्यों रुक गई है, वो मुझे खाना क्यों नहीं दे रही है, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडर्ड बाय हंगर, और एकदम से अब उसको कुछ भी ध्यान नहीं है वो क्या कर रहा है, पागल हो चुका है भूख के मारे। एंड ही डाइव्ड एट द फिश, उसने जंप लगा दी फिश पर। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और एकदम तेज चिल्ला के वो ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ गिरा। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वो उसने देखा कि वो तो स्पेस में गिरता जा रहा है। इट मीन्स वो किनारे पर था, क्लिफ की चोटी पर था, बिल्कुल किनारे पर, एज पर। एंड ही वॉज गोइंग डाउनवर्ड्स इनटू एयर, इन नाउ ही वॉज जस्ट लाइक फ्लाइंग। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, एकदम इतना ज़्यादा भयंकर उसको डर चढ़ा, मॉन्स्टर की तरह, बड़ा डर जो होता है, एकदम पैनिक, उसने जब पैनिक ने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, जैसे उसका दिल जो है वो भी धड़कना भूल गया। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस सिर्फ ये एक ही मिनट का डर था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, नाउ व्हेन ही वाज इन द एयर, नाउ अब उसको लग रहा है मैं नीचे गिर रहा हूँ, तो अगले ही पल उसको लगा कि उसके विंग्स जो है बाहर निकल आए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर्स देन अंडर हिज स्टमक, और हवा भी उसके फैदर्स से, पंखों से टकराई, फिर उसके पेट से नीचे से टकराई, एंड फिर से उसके पंखों से, विंग्स से टकराई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, कटिंग थ्रू द एयर मीन्स जैसे बड़ी स्पीड से विंग्स जो है हवा में जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स आउटवर्ड्स, अब वो उसमें हवा में तैर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है वो। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही वॉज जस्ट फीलिंग अ बिट डिजी, बस थोड़ा सा उसको चक्कर आ रहे हैं, बट वो डर नहीं रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, तो उसने अपने विंग्स फड़फड़ाए, फ्लैप किए, एंड ही वॉज फ्लाइंग हाईली। नाउ गा गा गा, इट वॉज द जॉयस नॉइज ऑफ अर मदर, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, इसकी मदर इसके पास से उड़ते हुए गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी मदर के पंखों में से, विंग्स में से बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और ये भी बड़ा खुश होकर इसने स्क्रीमिंग की, इसने उनका आंसर किया अपनी मदर का। ही वॉज वेरी मच हैप्पी नाउ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब इसके फादर भी इसके पास से गए। ही सॉ हिज 2 brothers एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, हिज होल फैमिली वॉज नाउ अराउंड हिम, फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कार्वेटिंग होता है हॉर्स की तरह जंप लगाना, बैंकिंग होता है एक पंख से, एक पंख ऊपर है टेढ़ा जैसे उड़ते हैं। सो मतलब ये उनके मैनर्स थे, अलग अलग मेथड्स थे किस तरह से वो उड़ रहे थे। सो दे वर जस्ट शोइंग देयर ऑल द स्किल्स, अपनी सारी स्किल्स वो शो कर रहे थे। नाउ देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अब ये यंग सीगल जो था बिल्कुल भूल गया कि ये कभी उड़ भी नहीं सकता था, इसे उड़ना नहीं आता था। एंड ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सॉर एंड कर्व श्रीकिंग शेली, कमेंडेड होता है प्रेज करना, तो अपने आप की ही इसने मतलब प्रेज करी। किस तरह से प्रेज की, इसने अपने आप को डाइव करके दिखाया, इसने हाई जंप लगा के दिखाई, कर्विंग करके दिखाई, चिल्ला के श्रीकिंग। ही वॉज वेरी मच हैप्पी नाउ, सो बड़ा मतलब ये सारी स्किल्स ही वॉज शोइंग नाउ टू हिज फैमिली। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो सी की तरफ जा रहा है बिल्कुल, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसके बाद उसने देखा मतलब वो देख रहा है कि उसके बाद समंदर के ऊपर बाहर बाद जो है पूरा ग्रीन सी उसको दिखाई दे रहा है, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और माउंटेन रेंजेस भी उसको दिखाई दे रही हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज, और उसने फिर से अपना स्किल्स दिखानी शुरू की। एंड कॉड अम्यूजली, कॉड मीन्स जो आवाज़ें निकालते हैं बर्ड्स। ही मेड अ लाउड नॉइज अम्यूजली, हैप्पीली। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो इसके पेरेंट्स और फैमिली जो थी वो तो इससे पहले ही उतर चुकी थी इस ज़मीन पर। They were beckoning to him, उसको भी इनवाइट कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। बैकनिंग होता है मेकिंग अ जेस्चर विद देयर बॉडी पार्ट्स, और with whatever if you are making a gesture with your fingers or hands, then you are beckoning to someone. So his parents are also beckoning to him, कॉलिंग श्रीली, बड़ा तेज चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर नीचे किए कि उस ग्रीन सी यहाँ पे मतलब लैंड है, तो उस भी लैंड पे मैं पैर रखता हूँ। हिज लेग्स सैंक इन टू इट, वो उसमें धंस गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर गया एकदम से, बिकॉज वैन ही वॉज कमिंग टू द ग्राउंड ही कुड नॉट मेक अ बैलेंस ऑफ स्टैंडिंग एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन। अब वो डर गया और एकदम से उसने फिर कोशिश की कि मैं ऊपर वापस हवा में ही जाता हूँ।
बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन अब वो थक चुका था और भूख भी उसे लगी हुई थी, एंड ही कुड नॉट राइज, तो वो नहीं उड़ पाया, एग्जॉस्टेड, टायर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। स्ट्रेंज एक्सरसाइज कौन सी थी? ये उड़ने की। सो ही वॉज वेरी मच टायर्ड बाय दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस फ्लाइंग। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर। थोड़ा सा वो नीचे गिरा और उसके बाद वो ज़्यादा और नहीं धंस पाया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसकी फैमिली भी बड़ी खुश थी, चिल्ला रही थी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट मीन्स उस पानी पर, वो ग्रीन जो ग्रास थी उसके ऊपर वो तैर रहा था। प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स फॉर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स डॉग फिश, और इसकी फैमिली जो थी इसको प्रेज भी कर रही थी, और जो वो डॉग फिश जो थी, जो फिश उन्होंने कैच की थी, वो उसको ऑफर कर रहे थे। He had made his first flight. This young seagull that was so much afraid of his flying, at last he had made his first flight. So this first part is ended up here, and this part tells us about that if we have faith in ourselves, if we do something with courage, everything possible for us. So this is a nice story. Hope you will understand and like this story. Thank you.